So hello everyone. Okay, today the first topic that I am taking is the relationship between AM and GM. Okay, if I have taken three numbers, I am taking the topic as relationship between AM and GM. Let us take two numbers A and B. Then what about their AM? AM is A is equal to A plus B by 2. And what about GM? GM, I will be taking G is equal to root AB. Let us find the relationship. For it, I will be writing A minus G. It will give you A plus B by 2 minus root AB, isn't it? Let us take LCM and solve. I will be getting A plus B minus 2 root AB. It can be written as root A into root B upon 2. कोई फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे आपको? This is root A minus root B the whole square upon 2. So the relationship between AM and GM of the numbers is AM is always greater than or equal to the GM, isn't it? Let's go for the questions now. The question I am taking as series is +11 plus 103 plus 1005 up to n terms. And we have to find the sum. So let us take the sum as Sn. Sn is equal to, अब आपके पास दिया हुआ है 11, 103, 1005 and up to so on. आपको ये तो AP भी नहीं दिख रहा और GP भी नहीं. So let us adjust it. क्या मिलेगा? I'll write 11 as 10 plus 1. This 103 can be written as 100 plus 3, 105, 1000 and 5000 plus 5 and so on. अब मैं like term साथ में लूँगी तो I am getting 10 plus 100 plus 1000 up to n terms plus 1 plus 3 plus 5 up to n terms. So what about the first bracket? First bracket क्या दिख रहा है आपको? First bracket आपका एक GP है and the second bracket is an AP, isn't it? तो यहाँ GP of n terms, here A is equal to 10, D is equal to, R is equal to 100 upon 10, which gives us 10. So I am getting sum of n terms as A. I'll be using the formula Sn is equal to A 1 r to the power n minus 1 upon r minus 1, which gives us the answer as 10 into 10 to the power n minus 1 upon 10 minus 1, 9, isn't it? What about the next one? This is an AP. दिख रहा होगा आपको common difference. For second bracket I am having A is equal to 1, D कितना दिख रहा है यहाँ पे आपको? 2 दिख रहा है. And what about Sn? Sn के फॉर्म के लिए हम लोग क्या लिखें? n by 2, 2a plus n minus 1 into d. This gives us a1. N is number of terms are n. First term is 1, 2 plus n minus 1 into 2. So ultimately the answer is 10 to the power n minus 1 upon 9 plus n by 2. फिर क्या मिल रहा है आपको? देखिए जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो you'll be getting 2n और लास्ट टर्म आपको मिल जाएगा 10 to the power n minus 1 by 9 plus n square, isn't it? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? S be the sum, P be the product and R the sum of the reciprocals of n terms of a GP. किसी भी GP में S दिया है टर्म्स का सम, तो हम लोग लेके चलेंगे let n terms of GP. क्या लेंगे उन्हें हम? A
ए आर स्क्वायर से लेके द लास्ट टर्म विल बी ए आर टू द पावर एन माइनस वन, isn't it? तो हमें क्या लिखना है, सम एस इज गिवन टू यू एज द सम ऑफ एन टर्म्स। एस आपका क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स हैं, तो इसे लिखें हम a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू ए आर टू पावर एन माइनस वन। हमने कोई भी एक फॉर्मूला, लेटेस्ट टेक, हमने इस तरह से यूज़ किया कि फॉर्मूला हमने लिख दिया आर टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। तो आपका ये एस की एक वैल्यू आ गई। लेट अस गो फॉर पी। पी क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, इट इज़ ए इंटू ए आर स्क्वायर से लेके इट इज़ ए आर टू द पावर एन माइनस वन। सो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स आर n, तो a टू द पावर हमारे पास हो जाएगा n, और उसी तरह से r की पावर क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस वन। दिस इज सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स ऑफ AP। आई राइट a टू द पावर n, सम का फॉर्मूला लगाने से आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म इज n। इस तरह से आपके पास p की वैल्यू आ गई। क्या पूछा गया, आपको पी स्क्वायर चाहिए। लेट अस गो फॉर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना आएगा, ए टू द पावर 2n इंटू आर टू द पावर n इंटू n माइनस वन विल बी द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। अब हमें निकालना है कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीपी, टर्म्स ऑफ जीपी। नाउ हम लेके चलेंगे r इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर से लेके 1 अपॉन ए आर टू द पावर n माइनस वन हमने लिया। यहाँ पे हो जाएगा, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे a की जगह हमारे पास 1 बाय a है। सम ऑफ, एज यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, कि अगर कोई टर्म जीपी में है तो उनका रेसिप्रोकल भी जीपी में होता है, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। वी विल बी अप्लाइंग द सम ऑफ एन टर्म्स। तो क्या आएगा, इट इज़ 1 माइनस 1 अपॉन आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, आपके पास जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, आर टू पावर एन माइनस वन इंटू आर, एंड वैसे ही ए इंटू आर टू पावर एन आर माइनस वन इंटू आर टू पावर एन। जब आपने साथ में इसे और सॉल्व किया, यू आर गेटिंग ए इंटू आर माइनस वन इंटू आर टू पावर एन माइनस वन। अब हमें निकालना है एस बाय आर होल टू पावर एन। तो हमने वैल्यू पुट करी, आर क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो उसके टर्म को रेसिप्रोकेट करके लिख देते हैं। जो भी हमने मेथड से सॉल्व करना है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये टर्म और इस पूरे की पावर आपकी n हो जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए a इंटू ए स्क्वायर होल टू द पावर n है, तो आपको मिल गया a टू द पावर 2n, और बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं। r टू द पावर n माइनस वन इंटू n, यू आर गेटिंग इक्वेशन 2। अब चेक करिए इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दोनों सेम हैं, जी हाँ। तो फिर आपको क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाय आर होल टू द पावर n। यही आपको प्रूव करना था। ओके एक और पैटर्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स, शो दैट द नंबर्स आर इन रेशियो दिस। ओके, सो लेट अस टेक टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी, क्या होंगे वो, a एंड b। इन दोनों नंबर ले लिया हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, देयर सम a प्लस b इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो हम इसे ले सकते हैं 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, a और b का रूट ab। सो आई हैव गॉट दिस वैल्यू, ये टर्म हमें मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे लेट, we have taken let a and b are the roots of a quadratic equation। so वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपको मालूम है कि जब अल्फा एंड बीटा रूट्स होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इक्वेशन इज, देयरफॉर इक्वेशन इज, वो क्या हो जाएगी आपकी, इट इज एक्स स्क्वायर
minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. You will be getting it as an equation. ये इक्वेशन आपके पास मिल गई. अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पे हमें मालूम है इक्वेशन 1 से a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी है, हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं. वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट ए बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0. अब हमने सॉल्व करना है इसे, तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू, यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे. इस फॉर्मूला जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू माइनस बी कितना हो गया आपके पास में 6 रूट ए बी प्लस माइनस रूट ओवर 36ab minus 4ac 4ab, isn't it, upon 2a will be there. So in place of a I am having 1, तो 2 हो जाएगा. अब सॉल्व करें इसे तो क्या मिला, 6 रूट ए बी प्लस माइनस 32 रूट इंटू ए बी. सो रूट से बाहर आके हमें क्या मिलेगा, देखिए ज़रा, आई एम गेटिंग 2. यहाँ मुझे मिल गया सॉल्व करने से, देखिए रूट ए बी मैंने कॉमन निकाला, साथ में 2 भी आ गया, तो आई एम लेफ्ट विथ 3 प्लस माइनस 2 रूट 2. आ रहा है ये इतना आपके पास में, क्योंकि 32 को आपने आगे आप सॉल्व करिए, यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू 2. देयरफॉर रेशियो ऑफ नंबर्स, अब आपके पास दो नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं, आपके पास दो नंबर्स दिख रहे हैं, रूट ए बी इंटू 3 plus 2 root 2 and 3 minus 2 root 2. Let us divide them. इनको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, a by b ratio of the roots is equal to 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2. So ratio is 3 plus 2 root 2 and ratio 3 minus 2 root 2. This is our answer. चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं. दिस इज एक्सरसाइज 3 मिक्स्ड प्रॉब्लम. इसमें भी AP एंड GP से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या लिखा है, ABC आर इन AP. तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, अगर AB एंड C आर इन AP हैं तो रिलेशन क्या होगा, यू आर गेटिंग 2B इज इक्वल टू A प्लस C. ये आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है. फिर आपको दिया हुआ है ABD आर इन GP. ABD आर इन GP, तो आपको क्या मिलेगा उससे, आपको मिल जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू AD. ये सब कंडीशंस आपको यूज करनी है नई कुछ वैल्यू निकालने के लिए. व्हाट डू यू हैव टू प्रूव, प्रूव क्या करना है आपको, यू हैव टू प्रूव दैट A माइनस B D माइनस सी आर इन GP. मतलब क्या प्रूव करना है यहाँ पे, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. ये आपने लर्न किया हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है इस चीज़ को. अब इसे कैसे सॉल्व करना है, यूजिंग द कंडीशन. मैं LHS लेके चल रही हूँ. लेट अस सी क्या आता है. LHS इज इक्वल टू A माइनस बी द होल स्क्वायर. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. क्या मिला हमें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. ठीक है, यहाँ पे B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास में, B स्क्वायर आपके पास AD है. इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू पुट करनी है, A स्क्वायर प्लस AD. अब देखें 2 इंटू B, 2B कितना है आपके पास में, A प्लस C. लेट्स पुट दैट वैल्यू ऑल्सो. इट इज़ A इंटू A प्लस C. जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए AD माइनस AC, और A कॉमन निकाल लेंगे तो यू विल बी गेटिंग D माइनस C विच इज़ योर RHS एंड हैंस प्रूव्ड. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू is question number 2. If A, B, C are in GP, we have to prove that log A, log B and log C are in AP. So given है A, B, C are in GP. ये दिया हुआ है आपको.
मतलब क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। लॉग का कंसेप्ट आपको मालूम है, आप दोनों तरफ आप लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए सी। अब लॉग के प्रॉपर्टीज यूज किया, हमें मालूम है लॉग समथिंग टू द पावर समथिंग होता है तो वो पावर सामने आ जाती है। द प्रॉपर्टी इज लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है हमें, that is if log mn is given to us we can write it as log m plus log n। ये वैल्यू हमने पुट करनी है, तो what shall we get, we are getting 2 log b is equal to log a plus log c। कुछ पैटर्न याद आ रहा है आपको, अगर आपके पास 2b is equal to a plus c होता है तो आप क्या बोलते हैं टर्म्स को, इसमें देखते ही समझ में आता है ना आपको कि a b c r in a p है कि नहीं। तो इसी तरह से आप यहाँ देखें, आपको मिल जा रहा है log a, log b and log c r in a p। इस तरह से ये प्रूव। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। इन क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर एन जी पी। तो हमें कुछ कंडीशन और भी कोई कंडीशन दी है, साथ में हमें प्रूव करना है एक्स वाई जेड आर इन ए पी। सो गिवन क्या है आपके पास में, ए बी सी आर इन जी पी। अगेन द सेम कंडीशन, फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे उसमें, हमको मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। दिस इज योर इक्वेशन 1 है कि नहीं। अब और कोई कंडीशन क्या दी हुई है आपके पास, ऑल्सो a to the power 1 by x is equal to b to the power 1 by y is equal to c to the power 1 by z। ये दोनों आपको इक्वल दिया है, तो आप इसको ले लेते हैं किसी कांस्टेंट के इक्वल, लेट अस टेक इट इज इक्वल टू k। तो हमें a इक्वल टू, अगर मैंने कंपेयर किया a टू द पावर 1 by x इज इक्वल टू k, तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू k टू द पावर x हो जाता है। सिमिलरली b आई एम गेटिंग एज k to the power y and c is equal to k to the power z is there। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है वैल्यूज। फ्रॉम 1 व्हाट शैल वी गेट, वी आर गेटिंग k to the power y होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, a is k to the power x into k to the power z। on adjusting the power I am getting k to the power 2y is equal to k to the power x plus z। अब बेसिस आर इक्वल, तो कंपेयर करें आप पावर्स को, क्या मिलेगा आपको, यू आर गेटिंग 2y is equal to x plus z। ये क्या शो कर रहा है, हमने किया है ना ए बी सी आर एन ए पी, तो 2b is equal to a plus c होता है। सो आई एम गेटिंग x y and z are in a p। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका पूरा उत्तर करेंगे। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिख रहा है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 216। एज आई टोल्ड यू इन जीपी अगर प्रोडक्ट गिवन है तो हम कैसे लेके चलेंगे नंबर्स को, लेट, फिर उसके आगे क्या करना है, इफ 2, 8 एंड 6 बी एडेड टू द रिजल्ट्स। इन तीनों नंबर्स में अगर मैंने 2, 8 एंड 6 ऐड किए तो रिजल्ट क्या होता है, दे आर इन ए पी। जो नए नंबर मिलते हैं दे आर इन ए पी। सो हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। सो लेट अस टेक द 3 नंबर्स इन जी पी। लेट द 3 नंबर्स इन जी पी एज, क्या लेके चलेंगे आप लोग इसे, a बाय आर। ध्यान रखिए यहाँ प्रोडक्ट दिया है इसलिए हम लेके चल रहे हैं a बाय आर, a एंड a आर। ठीक है, गिवन देयर प्रोडक्ट इज गिवन टू यू, क्या दिया हुआ है, a बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 216। इसको जब आपने सॉल्व किया आपको a की वैल्यू 6 मिल रही है क्या, देखिए ज़रा चेक करिए। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, numbers are
6 बाय आर, 6 एंड 6 आर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसे, अब इसमें बोला गया है इफ 2, 8 एंड 6 बी एडेड टू द रिजल्ट्स, द आंसर, द न्यू नंबर्स दैट यू आर गेटिंग, दे आर इन ए पी। तो हमको क्या लिखना है, 6 बाय आर प्लस 2, 6 प्लस 8 एंड ऑफ मिडिल टर्म। तो मैं लिखूंगी इसे 6r प्लस 6 बाय आर प्लस 2 इज इक्वल टू 2 times of 6 plus 8, 14, which is 20. On solving, we are getting 6r square minus 20r plus 6 is equal to 0. और सॉल्व करने से हमें मिल रहा है 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे अगर जब आप स्प्लिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसे जब आप स्प्लिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ज़रा, r इज इक्वल टू आपको 1/3 एंड 3 मिल रहा है क्या, मिडिल टर्म स्प्लिशन करिए, फैक्टराइज करिए और देखिए r इज इक्वल टू 1/3 एंड 3 मिल रहा है। तब आपके पास a 6 है, r 1/3 है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, इन वैल्यूज में हम पुट कर दें तो मेरे पास नंबर हो जाएंगे 18, 6 and AR is 2 when A is equal to 6 but R is 3, the numbers are, क्या मिल जाएंगे आपको नंबर्स बताइए ज़रा। You are getting the first number as A by R which is 6/3, 2, then 6 and 18. So in that manner you are getting the values. Okay, let's go for the next question. That is question. Let's start question number 6. The sum of three numbers in AP is 21. If second is reduced by 1 and the third is increased by 1, the resulting numbers are in GP. है कि नहीं? तो इन क्वेश्चंस को आप भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। आपको सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP दिया हुआ है तो आप वो नंबर्स को A माइनस B, D, A एंड A प्लस D लेते हुए सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इसे भी ट्राई करिएगा। ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। इफ अर्थमेटिक मीन A and 2 geometric means G1 and G2 are inserted between any two positive numbers, यहाँ याद रखिएगा the number are positive. So मेरे को पास A and B दो नंबर्स हैं, उनके बीच में मुझे एक अर्थमेटिक मीन निकालना है और दो ज्योमेट्रिक मीन, एंड वी हैव टू प्रूव दिस कंडीशन यूजिंग द गिवन वैल्यूज। ठीक है, लेट अस गो फॉर इट। लेट question number 8 we are starting is given numbers are, what are they are A and B. As per the question what are we having, हमारे पास क्या है, A is the arithmetic mean between A and B, तो हमें A plus B by 2 मिल रहा है, A equal to. Similarly 2 GMs are inserted between A and B, तो A, G1, G2, B are in GP, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि if we will be inserting GMs between two numbers we are getting a GP. अब इससे रिलेशन फाइंड करते हैं, G1 and G2 की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं क्या मिलती हैं। Here total number of terms are 4. R अगर आपने कॉमन रेशियो लिया तो R क्या होता है, R is B by A to the power 1 upon n plus 1. n कितना है यहाँ पे, n is 4 plus n is 2 plus 1. So I am getting it as R is equal to B by A to the power 1 by 3, isn't it? B by A की पावर क्या आ गई, 1 by 3. अब इसके बाद हमें टर्म्स निकालने हैं, हमें G1 and G2 की वैल्यूज़ निकालनी है। तो व्हाट इज़ G1? G1 आपको मालूम ही है ना, सेकेंड टर्म ऑफ GP है।
Second term of GP is AR. AR मतलब A into B by A to the power 1 by 3. Similarly, third term G2 is equal to AR square. यहाँ हमें मिल रहा है A into B by A to the power 2 by 3. ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमें जो कंडीशन प्रूव करनी है उसमें लेके आते हैं. लेट अस गो फॉर इट. हमें प्रूव करना है LHS इज G1 स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन G1. इसे लेते हुए चलना है हमें क्या मिलेगा देखिए ज़रा. हमारा LHS है G1 स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन G1. लेट अस टेक LCM. LCM लेने से देखें क्या मिलता है हमें. वी आर गेटिंग G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब अपॉन G1 G2. अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. G1 क्यूब मतलब मुझे इस पूरे टर्म का क्यूब निकालना है, तो क्या मिल रहा है देखिए ज़रा. A क्यूब एंड B बाई A टू द पावर 1 बाई 3 है. इसका क्यूब लेने से क्या मिल जाएगा मुझे. B बाई A साथ में प्लस अगेन A क्यूब एंड इस B बाई A होल टू द पावर 2 बाई 3 का क्यूब लेने से मुझे मिल जाएगा B बाई A द होल स्क्वायर अपॉन क्या मिल रहा है. A G1 इंटू G2 है. A इंटू B बाई A टू द पावर 1 बाई 3 इंटू B A इंटू B बाई A टू द पावर 2 बाई 3. वी आर गेटिंग A स्क्वायर B प्लस यहाँ क्या मिल रहा है देखिए ज़रा. A B स्क्वायर अपॉन यहाँ पे देखिए पावर इज़ 1 बाई 3, दिस इज़ 2 बाई 3. दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा. 1 by 3 plus 2 by 3 is 1, isn't it? 3 by 3 which is 1. तो हमारे पास ये बस A स्क्वायर इंटू क्या मिल गया हमें. B by A मिल गया. ठीक है, सॉल्व किया तो क्या मिला और हमने यहाँ से ए बी कॉमन निकाला. वी आर गेटिंग ए प्लस बी और नीचे क्या है मेरे पास ए बी फिर से है तो मेरे पास क्या बचा ए प्लस बी. एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ आई से देख सकते हैं वैल्यू. अगर आपके पास a इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 है तो वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 2a. तो आपको मिल रहा है ये इज इक्वल टू 2a विच इज़ योर RHS एंड हैंस प्रूव्ड. हेलो एवरीवन, आज फिर हम यहाँ हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है स्पेशल सीरीज़. उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्मूला इज 1 प्लस 2 प्लस 3 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. इट कैन बी रिटन एज समेशन n k इज इक्वल टू 1 to n into k where its value will be n plus 1 by 2 क्योंकि ये sum of n terms of AP है. The second formula that we are using is 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square, जिसे हम लिख सकते हैं summation k is equal to 1 to n k square, जिसका फॉर्मूला होता है n plus 1 to n plus 1 by 6. उसी तरह से द थर्ड फॉर्मूला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इज इक्वल टू समेशन n k इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब. और इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 बाई 2 द होल स्क्वायर. मतलब समेशन n की जो वैल्यू है उसी का स्क्वायर कर दिया तो हमें समेशन n क्यूब मिल जाता है. ओके, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. फाइंड द सम ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन टू यू. nth टर्म हम कैसे लेके चलते हैं. an अगर हमको दिया हुआ है an इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट an हमको दिया है n इंटू n प्लस 3. ओके, सो जब इसको सॉल्व करना होता है समेशन आपको स्पेशल सीरीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है. वी विल ओपन द ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 3n. अब आपके पास an इतना है. ठीक है, तो आपने जनरल टर्म लिखा, आपको मिलेगा a1 प्लस a2. सम क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स होता है, अगर मैंने Sn लिया तो a1 प्लस a2 अप टू an इज इक्वल टू
इसको अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में समेशन के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a k, आई कैन राइट ना, मैं इसे समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a k लिख सकती हूँ। तो जब मेरे पास a n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n है तो इन प्लेस ऑफ a k व्हाट कैन आई राइट, क्या लिख सकते हैं उसकी जगह, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस 3k। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग करते हैं। वी आर गेटिंग समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस 3 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k। कांस्टेंट हमेशा बाहर लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट इनटू द टर्म वेरिएबल हम कर सकते हैं। सो वी आर गेटिंग, अब यहाँ पे देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर। k स्क्वायर वाले टर्म्स का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या मिलेगा आपको, k स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू समेशन k क्या होता है, इट इज़ n प्लस 1 अपॉन 2। अब जब हमें इसको सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे टर्म आपका फैक्टर्स के फॉर्म में है तो हमें आंसर भी कोशिश करेंगे फैक्टर्स के फॉर्म में लाने की। सो लेट अस टेक आउट द टर्म्स कॉमन फ्रॉम इट। क्या क्या कॉमन आ सकता है, द मिनिमम टर्म दैट वी कैन टेक आउट एज कॉमन क्या होगा, n प्लस 1 बाई 2 और ब्रैकेट में क्या बच गया आपके पास में, दिस इज 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 3। सॉल्व करिए इसे तो आपको आगे क्या मिल जाएगा, देखिए ज़रा, you are getting n plus 1 by 2 and in the bracket you are getting 2n plus 1 plus 9 upon 3. So in all जब मैं इसे ऐड करूँगी और कॉमन निकालूंगी I'll be getting n plus 1, फिर यहाँ से 2 कॉमन आने से n plus 5 upon 3 which is our answer, sum of n terms of this spatial series। इसी तरह से हम बाकी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें nth टर्म दिया हुआ है तो हम इस तरह से सम फाइंड कर सकते हैं, बट क्या ज़रूरी है कि हर बार nth टर्म दिया हो। अब नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हम वो सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमें nth टर्म की जगह पूरी सीरीज़ ही दी है और उसमें से पहले हमें सबसे पहले nth टर्म सर्च करना है, ढूंढना है उसे, और उसके बाद फिर सेम पैटर्न वी कैन अप्लाई। ओके, सो लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ फाइंड nth टर्म एंड सम अप टू n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज गिवन टू यू, है कि नहीं। तो यहाँ पे लेट अस सी कैसे हमें टर्म्स मिलेंगे। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर A, विच इज 1 into 2 into 4 plus 2 into 3 into 7 plus 3 into 4 into 10। ये जो स्पेशल सीरीज होती है यहाँ पे टर्म्स आपस में किसी न किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड होते हैं, तो हमें ढूंढना है वही फॉर्म की इनमें क्या रिलेशन है आपस में। तो अगर मैंने इसमें से nth टर्म निकालना है an, इस an को हम, क्योंकि टर्म t फॉर होता है तो वी कैन राइट tn ऑल्सो। ओके, कहीं आपको tn भी दिखा तो दोनों का मतलब सेम है, t फॉर टर्म्स। वी आर गेटिंग द nth टर्म, जस्ट सी, ढूंढो। जब हम इसको ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा हमें, तो आप इसके लिए ढूंढने के लिए जो रिलेशन है वो देखिए, सारे फर्स्ट टर्म देखिए आप। पहले टर्म में फर्स्ट टर्म क्या है, इन द फर्स्ट टर्म वी आर हैविंग द फर्स्ट टर्म एज 1, फिर सेकंड क्या है 2, फिर थर्ड क्या है 3। इस तरह से कोई बताए कि nth टर्म क्या होगा। यस करेक्ट, इट इज n। अभी नेक्स्ट टर्म देखिए आप ज़रा, नेक्स्ट टर्म में क्या मिल रहा है आपको, नेक्स्ट टर्म 1 से 1 मोर है 2 है, उसके बाद 1 more than 2 is 3, then 1 more than 3 is 4, मतलब फर्स्ट टर्म से 1 more, we can write it as n plus 1। ठीक है, अब हमें देखना है द थर्ड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैटर्न क्या दिख रहा है बेटा, देखिए ज़रा एकदम। अगर आपको डायरेक्टली नाम लो, वी कैन गो फॉर nth टर्म ऑफ 4 7
10 एंड सो ऑन। अगर मेरे पास ये सब वैल्यूज दी हैं, टर्म हम कैसे निकालेंगे? क्या दिख रहा है ये आपको? दिस इज एन AP। AP का nth टर्म क्या होता है? an is equal to, इसमें क्या होता है पर्टिकुलर वैल्यू? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से आप सॉल्व करके, यहाँ d कितना दिया हुआ है? 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? You will be getting the nth term as 3n plus 1, isn't it? तो आपके पास थर्ड पैटर्न में nth टर्म आपको मिल गया 3n plus 1। तो इस तरह से ये आपका nth टर्म है। अब हम ब्रैकेट ओपन करके इसको पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से क्या मिलेगा आप देखिए ज़रा। दिस इज 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, 3n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n। ये हमें nth टर्म मिल गया। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे हम? Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n ak। अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने से क्या मिलेगा? समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n। ak कितना है? 3k क्यूब प्लस 4k स्क्वायर प्लस k। अब इसे अलग अलग करते हैं और सम ऑफ स्पेशल सीरीज वी कैन अप्लाई। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग 3 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब प्लस 4 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n। लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला हियर और देखते हैं क्या आंसर आता है। फॉर्मूला अप्लाई करने से हमें मिलता है 3 इंटू के क्यूब दिया हुआ है, तो ये n आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, समेशन n क्यूब और k क्यूब इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 टू n इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं n स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर बाय 4, isn't it? द नेक्स्ट इज, मैं लिख रही हूँ 4 सेकेंड फॉर्मूला समेशन k स्क्वायर का है, दैट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 एंड द लास्ट टर्म इज n प्लस 1। नाउ we will take out the least term common n plus 1 by 2 and we are left with 3 into n plus 1 by 2 again plus 4 into 2n plus 1 upon 3 plus 1। जब आप इसका LCM लेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है। You are getting n plus 1 upon 2, denominator is 6 and on solving you are getting 9n square plus 25n plus 14। अब ये स्प्लिट कर पा रहे हैं क्या आप? नहीं कर पा रहे, तो यू कैन लीव इट लाइक दैट और आपका आंसर क्या मिल रहा है? n प्लस 1 9n स्क्वायर प्लस 25n प्लस 14 बाय 12। तो इस तरह आप फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर हम सबसे पहले हम फिर से क्या करेंगे? nth टर्म निकालेंगे। वी विल बी टेकिंग an इज इक्वल टू, क्या मिलेगा? तो इस an को लेने के लिए देखिए फर्स्ट टर्म, सारे फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही हमें टैली करने पड़ेंगे। फर्स्ट टर्म में ध्यान दीजिए न्यूमरेटर क्या है? 1 स्क्वायर। सेकेंड टर्म में 1 स्क्वायर को एज इट इज रखा गया, साथ में प्लस 2 स्क्वायर लिखा गया। सी द थर्ड टर्म, वी आर हैविंग लास्ट टर्म पूरा का पूरा हमारे पास है, उसमें जो पोजीशन है उतना टर्म हमने ऐड कर दिया, क्योंकि थर्ड पोजीशन वाला ये टर्म है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह से फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? यस, क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो उसी तरह से न्यूमरेटर ऑफ द nth टर्म क्या होगा आपके पास? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके लास्ट टर्म n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n है, अपॉन डिनोमिनेटर में टर्म्स का कंडीशन देखिए। फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 1 प्लस 2, 1 को छोड़ा नहीं उन्होंने। थर्ड टर्म में देखिए 1 प्लस 2 लिया, प्लस 3 लिखा। उसी तरह से nth टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू द लास्ट टर्म n टर्म जाएंगे। अब ये क्या दिख रहा है आपको?
The numerator is summation k is equal to 1 to n ak and square, k square दिख रहा है आपको, and the denominator is summation k is equal to 1 to n k. Let us write their formula. Formula लिखने से क्या मिला हमें? This is n plus 1 2n plus 1 by 6 upon n plus 1 by 2, है कि नहीं? अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है. हमें मिल रहा है सॉल्व करने से 2n plus 1 by 3 as the nth term. थोड़ा सा इजी आ गया टर्म आपका, छोटा सा. सो लेट अस गो फॉर इट. nth टर्म आपके पास आ गया. अब हम इसका यूज़ करके सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करेंगे. देखते हैं क्या मिलता है. सो सम ऑफ n टर्म्स Sn इज समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n ak हम लिखेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे. 1/3 कांस्टेंट है. देन हम लिखेंगे समेशन, इन्हें अलग अलग उसी तरह से करना है. आपको मिलेगा 2k, k इज इक्वल टू 1 टू n प्लस समेशन 1 भी मिल रहा है बेटा. यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 टू n है. हर टर्म में आपके पास 1 है तो ईच एंड एवरी, क्योंकि यहाँ पे k नहीं है तो 1 की वैल्यू वेरी नहीं करेगी, तो कांस्टेंट विल लाइक दैट. तो n टाइम्स हमें इस 1 को ऐड करना है. तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? वी आर गेटिंग 1/3 2n plus 1 by 2 plus n, because we are adding one n times. अब इसे सॉल्व कर लें. हमें कितना मिल रहा है? 1/3 n square plus n which is 1/3 n square plus 2n. So this is our sum of n. Question number 7 में हमें प्रूव करना है LHS is equal to RHS. तो हम LHS लेके चलते हैं. LHS क्या है हमारे पास में? अब उस LHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1 into 2 square, that is not decimal, याद रखिएगा. 1 into 2 square plus 2 into 3 square plus 3 into 4 square. इसी तरह से आगे जाते हुए होगा. आपको इसमें एक फ़ायदा मिल रहा है कि आपको यहाँ पे nth टर्म दिख रहा है. यू डोंट हैव टू फाइंड द nth टर्म. सिमिलरली डिनोमिनेटर इज ऑल्सो हैविंग विद nth टर्म इन इट. तो अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं न्यूमरेटर लेके चलूँगी. न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है आपका? न्यूमरेटर में मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है. कैसा? 1 into 2 स्क्वायर प्लस 2 into 3 स्क्वायर से लेके मेरा लास्ट टर्म कहाँ तक आ रहा है? आई एम हैविंग n into n plus 1 द होल स्क्वायर. यहाँ पे आपका nth टर्म क्या है? nth टर्म इज n into n plus 1 द होल स्क्वायर. इसे जब हमने एक्सपैंड करके लिखा तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ब्रैकेट ओपन किया. वी आर गेटिंग n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n. अब इसका यूज़ करके हमें सम ऑफ n टर्म्स, ये n टर्म्स निकालने हैं. तो हमें क्या मिलेगा? Sn इज इक्वल टू, उसी तरह से आप उसे यूज़ करेंगे. समेशन ऑफ 1 इज इक्वल k इज इक्वल टू 1 टू n क्यूब ak. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चंस, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा समेशन k क्यूब, जहाँ k की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है, प्लस 2 समेशन k स्क्वायर, k इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, एंड समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n. अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं और एज वी वर डूइंग इन प्रीवियस क्वेश्चन हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाए, उसका सोल्यूशन छोटा हो जाए हमारा. तो फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा? n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4 प्लस n 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस n प्लस 1 बाय 2.
कॉमन क्या आ रहा है देखिए ज़रा यहाँ पे, वी आर गेटिंग n प्लस 1 बाई 2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, कॉमन निकालने के लिए फिर से ध्यान दीजिए, द लीस्ट टर्म यू विल बी सीइंग, क्या मिलेगा लीस्ट टर्म में, क्या है आप देखिए ज़रा, लीस्ट टर्म में आपके पास है n प्लस 1 बाई 2, बाकी सब में भी वो है क्या पहले चेक कर लीजिए और उसे कॉमन निकाल लीजिए। वी आर हैविंग n प्लस 1 बाई 2 प्लस 2 into 2n plus 1 by 3 plus 1 which is left with us। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा n plus 1, एलसीएम लेके लिख दिया आपने 6 2 12, ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपके पास में, देखिए ज़रा, आपको मिल रहा है 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6, सॉल्व करिए इसे, दिस इज n प्लस 1 बाई 12, 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10, ठीक है। तो वी आर हैविंग 30 मतलब 6 प्लस 5, जब आप इसे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म एक्सप्रेशन यूज़ करके आपको क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 बाई 12, फिर आपको मिलेगा देखिए ज़रा 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, ब्रैकेट्स आपने कॉमन निकाले, फैक्टराइज किया, तो आपको क्या मिल रहा है n प्लस 1 बाई 12 इंटू 3n प्लस 5 एंड द अदर ब्रैकेट इज गिविंग यू 3n n प्लस 2, देखिए ज़रा मिल रहा है कि नहीं आपको, आपने यहाँ से 3n कॉमन निकाला, n प्लस 2 मिल गया, दिस इज़ योर न्यूमरेटर, ठीक है। अब आप जाएंगे डिनोमिनेटर में, इसी तरह से डिनोमिनेटर सॉल्व करिएगा, डिनोमिनेटर क्या मिल रहा है देखिए ज़रा, व्हाट इज़ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज, इसमें सम ऑफ n टर्म्स किस तरह से दिया है, लेट अस टेक दैट इट एज s डैश n, क्या मिल रहा है उसे हमें, उसमें हमें 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3, इस तरह से द लास्ट टर्म इज, आप टैली कर सकते हो, पहले का स्क्वायर दूसरा एज इट इज़ और दूसरा फर्स्ट से 1 मोर है, तो वी आर गेटिंग n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, हियर द nth टर्म a डैश n वी कैन टेक एज n स्क्वायर n प्लस 1, ब्रैकेट ओपन किया, n क्यूब प्लस n स्क्वायर वी आर गेटिंग, ठीक है। अब हमें निकालना है Sn क्या होगा, उसी तरह से आपने समेशन वाले कंसेप्ट अप्लाई किए, यहाँ पे आपको मिल गया समेशन k क्यूब, जहाँ k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है 1 to n, प्लस समेशन k स्क्वायर वेयर k इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखने से मुझे क्या मिला, n स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन, वी आर गेटिंग k स्क्वायर एज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, कॉमन निकालिए, आपको मिलेगा n प्लस 1 बाय 2 कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बच गया n प्लस 1 बाय 2 एंड 2n प्लस 1 बाय 3, RHS से देखिए ज़रा, यहाँ पे 3n प्लस 1 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1 है कि नहीं, तो अगर आपका वर्क सही है, आपके स्टेप्स सारे सही हैं, और यहाँ पे देखिए आपका न्यूमरेटर के लिए क्या मिला n प्लस 1 12 बाई 12 3n प्लस 5 3n प्लस 2, तो इसमें क्या आपके RHS में दिख रहा है 3n प्लस 5, सो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होना चाहिए, ये तीनों टर्म्स तो रहें साथ में, या जो भी टर्म रहें उसमें इन सब चीज़ों को हटाना है, हमें सब डिवाइड करना है, तो हमें इन n प्लस 1 बाई 12 इंटू n प्लस 2 के साथ 3n प्लस 1, LHS इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5 अपॉन 12, एंड डिनोमिनेटर आपके पास में है n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 1 अपॉन 12, तो बच क्या गया
we are getting 3n plus 5 upon 3n plus 1, which is our RHS and hence proved. तो आपने अलग अलग मेथड्स देखे किसी स्पेशल सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है. सी क्वेश्चन नंबर 6. इसमें S1, S2 एंड S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देयर क्यूब्स, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स आर गिवन टू यू. और आपको एक कंडीशन प्रूव करनी है. ओके, सो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. आपको बस वैल्यू पुट करनी है. आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 एंड बताइएगा वेदर यू हैव गॉट द आंसर. सो इस तरह से चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज. नाउ वी विल मीट with the new topic. Let's see which topic we have to read now. Okay, goodbye.